Menopause is just a pause in your life. It is not a full stop. बात करना चाहिए. Yes, menopause is a subject which needs to be discussed more, talked about more. We need to talk with family members, friends, a doctor if you need to. Mood disturbances are very common in menopause transition phase, and if you have a hand on your shoulder, a sympathetic ear to listen to, it really makes a world of difference. Okay, menopause is a time to rejoice. It is a time to refresh. It is a time to rejuvenate yourself. It is not a depressing time. It is a time to start thinking about yourself. It is a time to start investing in you. And that's how, see, just like every phase of our life, we have come out winners. So this is also a phase of our life which we will fight and we will win and we will enjoy. We talk about equality with men, but we women are blessed with a special capability. हाँ जी, हम एक बच्चे की माँ बन सकते हैं. इस आशीर्वाद के साथ आती है कुछ जिम्मेदारियां और हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में आते हुए कुछ हार्मोनल चेंजेस. बट हम चेंजेस और चैलेंजेस दोनों से कहाँ डरते हैं. मेनोपॉज भी एक ऐसी ही सिचुएशन है जहां सिर्फ एक जरूरत है थोड़ा सा खुद को समझने की और थोड़ा सा खुद को संभालने की. वेलकम एवरीवन to episode 18 of Healthy Me, Happy Me on menopause, fallout, and rejoices with our guest speaker today, Dr. Jyoti Agarwal. Dr. Jyoti MBBS है, DGO है. She's a senior obstetrician and gynecologist. इनकी खुद की प्रैक्टिस है डॉक्टर ज्योतिष क्लिनिक के नाम से बानेर पुणे में. और आप कंसल्टेंट हैं जुपिटर हॉस्पिटल, उमरजी हॉस्पिटल एंड बेनी केयर हॉस्पिटल इन पुणे. वी ऑल्सो वेलकम आवर एस्टीम्ड गेस्ट, a few esteemed guests from the medical fraternity. Thanks for coming for this webinar. और मैं हूँ आपकी होस्ट विनीता अस्कंदानी from Team Happy. Thank you, Vinita, for this very generous introduction and having me here today. Hello, friends. Thank you for sparing your time on a Sunday morning. And today we are here to talk about a topic that's not very much talked about. It doesn't come into the focus of the discussion that much generally. ज़्यादा बात नहीं होती है, ज़्यादा सोचा नहीं जाता है. जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है वैसे वैसे हम उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं. बट नॉर्मली वो बहुत ही ड्रैब और बोरिंग माना जाता है, that we don't want to talk about it, and that is menopause. So we are here to talk about this word today and what it means in our lives today. So there are some medical aspects to it. However, it is the psychological and emotional aspect that intrigues and excites me a lot. वो सबसे ज़्यादा important लगता है मुझे. So what is menopause? Menopause क्या होता है? It is the time which marks the end of our menstrual cycles. It is diagnosed after a lady has gone 12 months without a menstrual period, and menopause can happen in your 40s or 50s. So it can be around, usually around, it starts after 40s and it can well over extend into 52, 53 years of age. Many women are having it in very late stages of life. It is very interesting to know कि मेनोपॉज का जो एज है वो हमारी मेटर्नल मेनोपॉजल एज यानी हमारी मदर के मेनोपॉज के एज से कनेक्टेड होता है. उनका जो मेनोपॉज किस स्टेज पे आया है उसी अराउंड उसी एज पे जो डॉटर का मेनोपॉज है वो आता है. सो इट इज वेरी मच लिंक्ड. तो कभी भी कंफ्यूजन अगर है कि ये मेनोपॉज हमारा कब आने वाला है अप्रोक्सीमेटली, आप अपनी मदर से पूछ सकती हैं. तो उनको जो उनका जो एज है अराउंड दैट ओनली यू कैन एक्सपेक्ट योर मेनोपॉज टू बी देयर. So menopause is a very natural biological process. Most likely you will experience some irregularity in your periods before they periods end. So menopause starting का symptom सबसे important यही होता है कि periods irregularity शुरू हो जाती है. सबको नहीं होगी लेकिन कई लोगों को ज्यादातर period irregularity शुरू हो जाती है. Also disrupt होती है sleep. Energy levels are affected. Emotional health is affected. So the menopause will start showing some effects
in your routine and in on you as a person, and you start feeling okay, then you start thinking, okay, I have crossed 40, am I approaching menopause? So there are so many things which the menopause brings in your life. So most importantly, the symptoms of menopause are the months or years which are leading up to menopause, which is called as the perimenopausal एज ग्रुप, जहां पे लेडीज ये डिस्कस करना शुरू करती है कि मेनोपॉज आया नहीं है लेकिन आने वाला है. दैट इज टिपिकली कॉल्ड एज, मेडिकल लैंग्वेज में उसको पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप बोला जाता है. तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं, जो ज्यादातर लेडीज कंप्लेन करती हैं या सोचती हैं कि अच्छा भी कुछ डिफरेंट हो रहा है हमारे बारे में. पीरियड्स इरेगुलर शुरू हो जाते हैं, वजाइनल ड्राइनेस एक्सपीरियंस होने लगती है, थोड़ा इचिंग फील होता है, हॉट फ्लैशेस फील होने लगते हैं. हॉट फ्लैशेस का क्या मतलब है? मतलब बहुत ज्यादा सडनली गर्मी लगने लगे तो उसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं हम. चिल्स, यानी आपके आसपास के लोग जो हैं उनके लिए रूम का टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है लेकिन आपको ठंड लग रही है. नाइट स्वेट्स, रात में सोते सोते अचानक पसीना आना. स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी नींद प्रॉपरली ना होना, बार बार रात में नींद खुल जाना या देर से नींद आना. मूड चेंजेस, घर वाले कहना शुरू करेंगे कि आप थोड़े जल्दी इरिटेट हो रहे हो या मूड डिफरेंट हो गया है आपका, आप उतना ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो जितना आप पहले करते थे. वेट गेन एंड स्लो मेटाबॉलिज्म. ऑफ कोर्स नॉर्मली ये डिस्कशन बहुत बार होती है लेडीज की आपस में कि अच्छा अब मेरा थोड़ा वजन बढ़ने लगा है, मैं थोड़ा जल्दी वेट गेन हो रहा है मेरा, जितना मेरा ऐसा था पहले उतना जल्दी जल्दी मैं एक्सरसाइज से अपना वजन कम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, दैट इज द रेट एट विच द बॉडी यूटिलाइजेज द न्यूट्रिएंट्स एंड कीप्स अप द एनर्जी लेवल्स, वो मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे एज के हिसाब से थोड़ी सी कम होने लगती है. बाल थोड़े कम होने लगते हैं, स्किन ड्राई होती है, ब्रेस्ट्स के अंदर जो शेप के चेंजेस हैं वो भी कई लेडीज को फील होते हैं कि थोड़ा सा शॉर्टर साइज इज नाउ फिटिंग देम प्रॉपरली. उसके अलावा कुछ और डीप चेंजेस हमारी बॉडी में हमें फील होते हैं. कुछ लोगों को कमजोरी की वजह से डिजीनेस फील होती है, एंजाइटी यानी बेचैनी कि जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है वो उतना स्मूथ नहीं है जितना पहले होता था. याद रखने में दिक्कत आती है, पुअर मेमोरी, स्लाइटली पुअर मेमोरी, कि अच्छा मम्मी आप भूलने लगी हो ये चीजें, आप पहले भूलती नहीं थी, अब मेरे बारे में आप भूलने लगी हो. यू नो दीज काइंड ऑफ रिमार्क्स, इस तरह के रिमार्क्स आपको कभी कभी सुनने में मिलेंगे. कंसंट्रेशन स्पैन पहले से थोड़ी कम, जो वर्किंग विमेन है या जो जो बहुत सारी चीजें जिन्हें करनी होती है उन्हें थोड़ा रियलाइज होगा कि अब ये चीजें इतना आसान नहीं रही याद रखना. इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, रिड्यूस्ड मेमोरी, थोड़ा सा डिप्रेसिव मूड, लिटिल मोर इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स. And there is one more important factor, because of the vaginal dryness and the irritation, a reduction in the interest in sexual activity. वो आपके पार्टनर कभी कभी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि now this is something which you are not enjoying that much or not involved in. मेंस्ट्रुअल ट्रांजिशन ऑल्सो इरिटेट करते हैं, क्योंकि जिस टाइम से स्मूथली पहले पीरियड्स आ रहे थे उस तरह से नहीं आ रहे हैं, कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी लेट आ रहे हैं, कभी ज्यादा दिनों तक ब्लीडिंग हो रही है, कभी बहुत कम हो रही है. तो ये सब भी एक इरिटेंट फैक्टर है, आपको बीच बीच में परेशान कर सकता है. थोड़ी लंबी साइकिल्स भी हो सकती हैं जिसके लिए लगता है लेडीज को कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए. स्किन पे भी बड़े चेंजेस आते हैं, ड्राइनेस होना, स्किन का थोड़ा इलास्टिसिटी कम होना, शाइन कम होना, टिंगलिंग वगैरह भी थोड़ा ज्यादा फील होता है. जॉइंट्स में सोरनेस, ये भी कई लेडीज का कंप्लेन रहता है कि अब हमारे थोड़े जॉइंट्स दुखने लगे हैं, बैक एक्स हो रहे हैं, शोल्डर्स एक्स हो रहे हैं. जिस स्पीड से हम लोग पहले सिलाई बुनाई कर लेती थी अब नहीं कर सकती, नेक जॉइंट में पेन हो रहा है या वो उतना चल नहीं पा रहे हैं. सो वेरी कॉमन कंप्लेन्स. ब्रेस्ट की स्वेलिंग, थोड़ा पेन फील होना, जल्दी घबराहट फील होना. उसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन इस एज ग्रुप में लेडीज को लगती है, विच इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी बाथरूम जाने के लिए आपको काफी फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है, या फिर आपको अगर अर्जेंटली जाना है तो वो आप रोक नहीं पाते, वेट नहीं कर पाते, सो दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम विच रियली रियली इरिटेट्स मेनी women who are when they are traveling or when there are long sittings.
तो उस समय इस चीज का रियलाइजेशन होना लगता है लोगों को, लेडीज को पर्टिकुलरली फील होता है कि अच्छा अब ये कुछ डिफरेंट हो रहा है, सडनली होने लगा है जो पहले नहीं हो रहा था। तो ये काफी सारे सिम्टम्स हैं जो धीरे धीरे हमें नोटिस होने लगते हैं एज अ वुमेन। आई थिंक हम एज ए लेडी डॉक्टर ऑल्सो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं अपने ओपीडी में एड्रेस करती हूँ, और बहुत सारे लोगों को ये चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं। सबको सब कुछ नहीं होता, कुछ कुछ होता है, और किसी किसी का मेनोपॉज बहुत स्मूथ हो सकता है, किसी का बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। बट यस, होता चेंजेस सब में है, सबके होते हैं चेंजेस। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पेरी मेनोपॉजल एज में कोई परेशानी ना हो, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ साइकिल। इससे हम बच नहीं सकते, इट इज गोइंग टू हैपन। जिस तरह पीरियड शुरू हुए हैं, एक दिन वो खत्म भी होंगे, और जब वो खत्म होंगे तो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे उनका हमको सामना करना है, और उनको चेंजेस को हमें समझ के उनके साथ उनको एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सो व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ मेनोपॉज? अब हम जब बात करते हैं कि ये होने वाला है, तो ये क्यों होने वाला है? तो स्किपिंग द पीरियड्स ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज इज वेरी कॉमन एंड एक्सपेक्टेड। मतलब ये हो सकता है कि पीरियड साइकिल लंबी होते होते इतनी लंबी हो जाए कि 2-2 महीने से 3-3 महीने से पीरियड आ रहे हैं। तो ये, और या ये भी हो सकता है कि कई महीनों तक ना आए, एंड देन दे सडनली स्टार्ट एंड यू हैव अ रेगुलर मंथली साइकिल अगेन फॉर अ फ्यू मंथ्स, कि 4-5 महीने बिल्कुल पीरियड्स नहीं आए, और फिर उसके बाद एकदम से 4-5 महीने रेगुलर पीरियड्स आए, फिर वापस गायब हो गए। सो दीज आर वेरी कॉमन things, which are very common effects and the observations of the perimenopausal period. The periods also tend to happen on shorter cycles, or they are very close together. ये भी हो सकता है कि हर 10-15 दिन में पीरियड स्टार्ट हो गए वेरी सडनली। इट टेक्स यू बाय सरप्राइज कि आपने एक फैमिली फंक्शन प्लान किया हुआ है, कोई पूजा प्लान की हुई है, आप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पीरियड्स खत्म हो गए, आपने उस हिसाब से प्लान किया, एंड देन सडनली okay, now the bleeding has started. It is very confusing, irritating, very very traumatic for women, जहाँ पे joint family में ladies को बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं वो, कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप किचन में नहीं जा सकते। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से कई बार यू आर इन अ फिक्स, कि आप पूरा अरेंजमेंट कर चुके हो और अब आप उसको परफॉर्म पूजा को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यस, इट इज वेरी ऑकवर्ड and at times very difficult situation to handle, but yes, this is menopause. You have to take it as it comes. तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब सडनली वो स्टार्ट हो जाता है। बट इसके साथ साथ इस पीरियड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये ध्यान रखें कि 2 पीरियड साइकिल इरेग्युलर हो गई है, लेकिन प्रेगनेंसी फिर भी पॉसिबल है, बिकॉज एग्स अभी भी बन रहे हैं एंड दे आर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस। तो इसका जो पेरीमेनोपॉज का जो फिजियोलॉजी जो है उसके बारे में भी मैं आपको 2 लाइन में एक बार बताना चाहूंगी, कि जब इसमें 2 पर्टिकुलर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में कई जगह पे आपने पढ़ा होगा, ओवर द काउंटर आपके मेडिसिन में भी कुछ कुछ में होता है, डॉक्टर्स भी इस बारे में बात करते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी पढ़ते होंगे, मेडिकल जर्नल्स में भी कहीं कहीं। तो इन हार्मोन्स, ये 2 पर्टिकुलर ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को, विमेन की बॉडी को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और इन्हीं 2 हार्मोन्स के वजह से पूरा साइकिल पीरियड्स का चलता है। तो मैंने अपने इस पीपीटी में भी जैसे थोड़ा सा बताया हुआ है कि ईस्ट्रोजन की वजह से, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ओवरी में एग्स बनने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओवरीज के जो एग्स हैं उसमें से जब कम हो जाते हैं बनने, तो ओव्यूलेशन जो है वो इरेग्युलर हो जाती है। ओव्यूलेशन यानी जो एग्स का जो रिलीज है ओवरी से वो इरेग्युलर हो जाता है, और उसके साथ में जो ईस्ट्रोजन का जो डेफिशिएंसी होता है उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है, वो जो थिकनिंग है जो कि पीरियड्स के टाइम पे शेड होती है, वो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन की वजह से होती है। तो जब प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसकी थिकनेस भी कम हो जाती है और पीरियड्स का फ्लो एकदम कम होने लगता है। धीरे धीरे जब मेनोपॉज पहुंचता है तो ओव्यूलेशन बिल्कुल बंद हो जाता है और दोनों हार्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि उसकी शेडिंग बंद हो जाती है और पीरियड्स नहीं आते। तो ये बेसिक फिजियोलॉजी है जो थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और हमारे हार्मोन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं।
तो इसके साथ साथ जब सिम्टम्स आते हैं हमारे पास में, जो भी विच इंक्लूड चेंजेस इन मेंस्ट्रुएशन और बाकी सारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, तो जैसा मैंने बताया ये सभी के लिए बहुत अलग होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप और आपकी सिस्टर के सिम्टम्स बिल्कुल सेम होंगे, ये भी नहीं है। एवरी बॉडी इज डिफरेंट। थोड़ा बहुत जेनेटिक डिफरेंस जो भी होता है उसके बेसिस पे, और आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका खाना पीना, उसके बेसिस पे भी ये सिम्टम्स चेंज होते हैं। ऑल्दो आप सिबलिंग्स हैं, लेकिन आपके सिम्टम्स दोनों के बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ओके, सो देयर आर वेरी मेनी मेनी। सॉरी सॉरी, इज देयर अ क्वेश्चन? नहीं डॉक्टर ज्योति, शायद किसी का अनम्यूट हो गया था। आप यू कैन कंटिन्यू। Yes. So there are many effective treatments which are available from the lifestyle adjustments to the hormone therapy. तो हम उन treatments के बारे में अब थोड़ा बात करते हैं। हमने symptoms के बारे में भी बताया है और क्या कारण हो सकते हैं और बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल, वो भी मैंने अभी थोड़ा सा आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। तो अब हम आगे चलते हैं कि जो पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा इरिटेटिंग सिम्टम्स हैं, जिनसे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, उनमें है एक है कूल हॉट फ्लैशेस। यानी जो हॉट फ्लैशेस में सडनली आपको वेजोमोटर फ्लश जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इट इज अ फीलिंग ऑफ वार्मथ or heat which begins from the umbilical area, moves upwards towards the head, and it is followed by sweating of the head and the upper body. It is most common symptom which is affecting about 75% of the women. तो जिन भी 75% of the women who are in the perimenopausal age group, उनमें ये सबसे ज्यादा common symptom feeling of sudden heat। आपको अचानक रूम में लगेगा गर्मी बहुत हो गई है और अचानक पसीना निकलने लगता है। हम कई बार आसपास में भी लेडीज को देखते हैं, आपने भी देखा होगा, अचानक वो बहुत ज्यादा पसीने में भीग गई हैं एंड दे फील सो एम्बैरेस्ड। इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि अचानक शुरू हो जाता है बात करते करते। आप मीटिंग में हैं, आप कैफेटेरिया में हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और अचानक से आपको बहुत तेज गर्मी लगने लगी, पूरा चेहरा पसीने में भीग गया है और आप उठ के भागते हैं, एसी चलाइए, पंखा ऑन कीजिए। इट इज वेरी ऑकवर्ड व्हेन यू आर इन अ ग्रुप एंड सडनली आप उठ के खड़े हो गए हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। इट्स यूजुअली लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, नॉर्मली थोड़ी देर के लिए ही होता है, बट समटाइम्स इन few cases it is few hours, every day or even once in a few days. So the frequency is very very different for every woman. It is very embarrassing, discomfort, sleep disturbances भी होते हैं, emotional instability भी ये लेके आता है इस टाइप का सिम्टम। तो इसको हेल्प कैसे करें हम? व्हाट कैन वी डू इमीडिएटली? वी मस्ट ड्रेस इन लेयर्स। हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि थोड़ा 2-3 पतले पतले आप कपड़े पहने, तो जिसको आप जैसे अपन जैकेट्स उतारते हैं उसी तरह से आप 1 या 2 ऊपर की ड्रेस लेयर्स अगर आप उतार के रखेंगे तो, एंड गेट अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, कुछ ठंडा आप साथ में रखें रूटीनली अपने पास में। जब भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो घर में भी, अपने ऑफिस में भी टेबल पे आप रखें ठंडा पानी। ओके, ट्राई टू पिन पॉइंट व्हाट ट्रिगर्स दीज हॉट फ्लैशेस, क्योंकि क्या होता है कि कुछ नॉर्मली इनका ना एक ट्रिगर पॉइंट कई लोगों का होता है, जैसे हॉट बेवरेजेस, ज्यादा कॉफी चाय पीने की वजह से हो सकता है, कैफीन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है बॉडी को, एंड हीट वेव्स आते हैं, कई लोगों में जल्दी आते हैं, कई लोगों में इसका असर नहीं होता कि 1-2 कप कॉफी से कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई बार 1 कप कॉफी भी उसको ट्रिगर करती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर मेटाबॉलिक सिस्टम, है ना। उसी तरह स्पाइसी फूड्स हुए, या रात में किसी ने ड्रिंक किया, थोड़ा 1-आध ग्लास भी अल्कोहल का चला गया। स्ट्रेस कभी कभी बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर हो सकता है कि घर में कोई काम ऐसा हो गया जो आपको बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, या ऑफिस वर्क ऐसा हो गया, तो दैट स्ट्रेस कैन ऑल्सो ट्रिगर दोज हॉट फ्लैशेस। हॉट वेदर, yes, and even a warm room can trigger these hot flashes in some women. So everyone has to slowly realize what is my trigger which is bringing those hot flashes in my body. थोड़ा सा अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को और अपने रिएक्शंस को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम थोड़ा समझ पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी चीज प्रॉब्लमेटिक है और उसको हम थोड़ा अवॉइड भी कर पाए। कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं जैसे आइसोफ्लेविन्स, विटामिन ई एंड एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से और डिस्कशन से बिल्कुल ली जा सकती है, एंड इन सम वेज टेकन फॉर पर्टिकुलर डोसेज एंड ड्यूरेशन इट इज वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। उसके अलावा जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लमेटिक चीज है, जो फैक्टर है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है पर्टिकुलरली इन दिस एज ग्रुप, इज द डिक्रीज्ड वेजाइनल कंफर्ट। ड्राइनेस बहुत ज्यादा कॉमन आती है हमारे पास, बहुत सारे केसेस आते हैं जो सिर्फ वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से इन्फेक्शन
में कन्वर्ट हो गए हैं. ड्राइनेस इज अनदर रीजन विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल वजाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मली वजाइना है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल फ्लोरा नॉर्मल वे में जैसे हमारे पेट में रहते हैं वैसे ही वहां रहते हैं, नॉर्मली डोंट कॉज एनी प्रॉब्लम्स. बट ड्राइनेस की वजह से उनको एक्सेसिव ग्रो करने का चांस मिल जाता है. और उस केस के अंदर क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन है विद एज, एंड लाइफस्टाइल अगर स्ट्रेसफुल है, इट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू infections also. So the cause of vaginal infections in this age group can be as simple vaginal dryness related to the perimenopausal hormonal changes. तो उस केस में घबराने की बात नहीं है. कई बार लेडीज को लगता है हम बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं. तो उस केस में पेरीमेनोपॉजल जो हार्मोन चेंजेस है, दे कैन बी वन वेरी बिग रिस्पॉन्सिबल फैक्टर. तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. और उस केस में वाटर बेस्ड वजाइनल लुब्रिकेंट्स, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स या मॉइस्चराइजर यूज करके उस ड्राइनेस को कम किया जा सकता है. और कंट्रोल में रखने की वजह से वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी. ऑल्सो इट विल अफेक्ट and help your sexual life, which is very very important at this age, because anyway the desires are low, discomfort is high. So frequency and the interest is very very much affected. लेकिन ये चीजें कुछ चीजें ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं जो वाटर बेस्ड है, बट अदरवाइज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इनको यूज किया जा सकता है. एंड द चांसेस ऑफ हैविंग रिपीटेड इन्फेक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड अप टू अ बिग एक्सटेंट. इसमें जैसे जो मॉइस्चराइजर्स वगैरह अवेलेबल हैं उनमें काफी सारी वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए वो प्रोडक्ट्स चूज करना चाहिए विच डोंट कंटेन ग्लिसरीन, बिकॉज इट कैन कॉज बर्निंग, इरिटेशन इन द वुमेन हु आर वेरी सेंसिटिव टू ग्लिसरीन एट टाइम्स. तो अच्छी तरह से डिस्कस करके अपनी एलर्जीज एंड सेंसिटिविटीज अगर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, उसके साथ ही आप ये प्रॉपरली यूज करें, क्योंकि ये सबकी बॉडी टाइप के हिसाब से हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है. इन स्टेइंग सेक्सुअली एक्टिव हेल्प्स अ लॉट बाय इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द वेजाइना. सो यस, बी विद योर पार्टनर्स एज मच एज पॉसिबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लीप. यस, नींद खराब होना ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जिससे अगला पूरा दिन खराब हो जाता है. So it's very important to have a very good sleep, and ये sleep factor, sleep is the smoothness of the sleep is affected very much in this age group. So very important factors are, क्या आप उन चीजों को फाइंड आउट करें जो आपकी नींद एक्चुअली खराब करती रही हैं पहले भी. फॉर एग्जाम्पल कैफीन, लेट स्टेइंग अप लेट, आज बहुत देर हो गई अब नींद ही उड़ गई, आज 2 कप चाय हो गई अब तो नींद ही नहीं आएगी. So avoid caffeine, which can make it hard to get to sleep. Avoid drinking too much of alcohol if there is any habit, which can interrupt sleep. Exercise is very important. Once a day, अच्छी good exercise which can actually make you sweat is very very important to keep a good healthy metabolism, energy levels, you know. But it should not be done right before bedtime, बिकॉज बेड टाइम पहले अगर एक्सरसाइज हुआ है, आपके बॉडी के हॉर्मोन्स का चेंजेस हो जाता है, एक्टिविटी लेवल, मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, देन अगेन यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप. अगर हॉट फ्लैशेस की वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, देन यू मे नीड अ वे टू फाइंड देम, मैनेज देम बिफोर यू कैन एक्चुअली गेट एन एडिक्वेट रेस्ट. तो थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट्स को मैनेज करें, रूम को मोर कंफर्टेबल रखें, सॉफ्ट कॉटन क्लोथिंग वेयर करें, विंडोज ओपन रखें, टेम्परेचर मैनेज करके उसके बाद आप सोने जाइए, तो हॉट फ्लैशेस का ट्रिगर होने का चांसेस कम हो जाएगा, and you'll be able to sleep a little more better. Relaxation techniques. Yes, we talk a lot about exercise, we talk about sleep, we talk about, you know, work-life balance, managing your diet, but relaxation techniques are equally important. Very important techniques are deep breathing, paced breathing, guided imagery, massages, progressive muscle relaxation. All these are very important to relax the muscles, and along with the muscles they relax your mind and body, and they are very helpful in the menopausal symptoms. You can find several books, CDs and online offerings which are present for different type of relaxation techniques. So it is not just the exercise, relaxing is also equally important. So when we're talking about exercise, yes, one particular exercise I would definitely recommend for this age group is strengthening your pelvic floor. Pelvic floor muscles exercises are called Kegel exercises, which can improve
यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऑल्सो। तो पेल्विक फ्लोर मसल में जैसे मैंने आपको एक ही फोटो दिखाया है, उसी तरह की 3-4 और एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि यूट्रस के आसपास के पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करती हैं। उस यूट्राइन ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स जो हैं वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि दे आर हैंगिंग इन आवर बॉडी थ्रू लिगामेंट्स एंड मसल्स। और एज के साथ साथ उन मसल्स और लिगामेंट्स की इलास्टिसिटी कम होती जाती है। तो जब इलास्टिसिटी कम होती है तो दे स्टार्ट सैगिंग, तो और उसके वजह से पेन्स, स्ट्रेचेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये सब डिस्कम्फर्ट्स लेडीज को फील होने लगते हैं। तो अगर पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस की जाती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 40, तो इन कीगल एक्सरसाइजेस की वजह से यूट्रस और उसके आसपास के सारे मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो सैगिंग ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स और हैवीनेस इन द ऑर्गन्स एंड हैवीनेस इन द लोअर एब्डोमेन, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी डिफिकल्टी टू कंट्रोल द यूरिन, इन सब प्रॉब्लम्स में ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल रहती हैं। Yes, so getting regular physical activity and exercise on most of the days is also protective against heart diseases, diabetes, osteoporosis, other conditions which are associated with aging. तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में, और उन सब का असर हमारे हार्ट पे, हमारे शुगर लेवल्स पे, हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ पे, इन सब पे पड़ता है। ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा वेट ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये सब बहुत यूजफुल मेथड्स हैं टू स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स। क्योंकि इस एज ग्रुप के अंदर आप, जैसे हम कंप्लेन करते हैं कि बैक दुख रहा है, नीज दुख रहे हैं, जल्दी जल्दी चलना हो तो जल्दी थक जाते हैं, शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होने लगते हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहती है। और उस एक्सरसाइज में भी सिर्फ वॉकिंग ही नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बोन्स के लिए भी ट्रेनिंग थोड़ा सा करना चाहिए, जो कि आजकल लोग काफी अवेयर हो रहे हैं उसमें। पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ वॉक किया और ठीक हो गए, वॉक किया और उतना ही एनफ हो गया। बट आजकल पीपल आर वेरी वेरी अवेयर कि केवल वॉकिंग नहीं, हमारे बोन्स और जॉइंट्स का जो लिगामेंट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। So we have talked about exercise and sleep, लेकिन डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पिलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो रिड्यूस द कैलोरी इनटेक बाय 400 to 600। जैसे ही एज आपका 40-44 के आसपास क्रॉस हुआ तो एक्चुअल कैलोरी इनटेक थोड़ा कम करना चाहिए। Variety of fruits, vegetables, whole grains, saturated fats and oils and sugars have to be reduced, but fruits, vegetables and whole grains बहुत बढ़ाना जरूरी है। प्रॉपर क्वांटिटी में आपके डेली के फ्रूट्स होने ही चाहिए, 2 फ्रूट्स डेली होने चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, एनफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड कर्ड होना चाहिए। जो भी सैचुरेटेड फैट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्राइड फूड है, ऑयल्स, अलग अलग टाइप के ऑयल्स जो बहुत सारी क्वांटिटी में, कई लोग सब्जी में तेल डालते हैं, शुगर्स जो रूटीन में ऐड की जाती हैं कि राइस में भी शुगर है, दही में भी शुगर है, मिल्क में भी शुगर है, मिठाइयाँ भी हैं, उन सब की क्वांटिटी अभी वी नीड टू वॉच आउट। ऐसा नहीं है कि जिनको सिर्फ डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इन रूटीन एवरी लेडी शुड वॉच आउट कि हमें कितना इंटेक लेना है, क्योंकि इवेंचुअली इट विल ट्रांसलेट into heart problems, it will translate into sugar problems. So diet जो vitamins और minerals में rich है, that will actually help the menopausal symptoms. So जो symptoms produce हो रहे हैं उनकी intensity at least कम हो जाएगी अगर आपकी डाइट में अच्छी तरह से विटामिन मिनरल्स हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन और फिश प्रेफर्ड है इंस्टेड ऑफ रेड मीट, और सोया प्रोटीन पर्टिकुलरली विमेन इन दिस एज ग्रुप उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज सोए में थोड़ा सा इस्ट्रोजन होता है विच ऑल्सो हेल्प्स द सिम्टम्स ऑफ द इस दिस एज ग्रुप, द मेनोपॉजल सिम्टम्स को हेल्प करने के लिए, एंड इट इज रिच इन प्रोटीन। तो इंडियन डाइट में नॉर्मली प्रोटीन की क्वांटिटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है, तो इन दिस केस सोया डेफिनेटली इज वेरी हेल्पफुल इन दैट रिस्पेक्ट। तो अगर डाइट के बारे में और भी ज्यादा अगर क्वेश्चंस हैं तो बहुत अच्छा आइडिया होता है कि जब आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं
तो अपनी एज ग्रुप के हिसाब से उनसे एक डाइटिशियन का, न्यूट्रिशनिस्ट का रेफरेंस लें और उसके हिसाब से अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, कितना आपका वेट है, कितनी आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है, आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है डायबिटीज की या कोलेस्ट्रॉल की या ब्लड प्रेशर की, उसको देखते हुए एक डाइटिशियन से रेफरेंस लेके प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएं कि हमारी बॉडी की जो लिमिटेशंस हैं और हमारी जो एक्सरसाइज का लेवल है उसके हिसाब से हमारी कैलोरी इंटेक क्या होनी चाहिए और हमारी एज ग्रुप के हिसाब से हमारे विटामिन और मिनरल्स के इंटेक के लिए हम किस टाइप का फ्रूट वेजिटेबल लेवल फॉलो अप करें, ताकि हमारे को सिम्टम्स कम से कम आए, एनर्जी सबसे अच्छी रहे और साइड इफेक्ट्स जो एज के होते हैं वो मिनिमम रहे, कम से कम हो हमें। ओके, तो डॉक्टर से जो बात करना है उसके अंदर एक दो पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपका कैल्शियम लेवल, आपका विटामिन डी लेवल, आपके मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स वो आपके कितने हैं, उनका लेवल्स फाइंड आउट करना, टेस्ट करके उनकी डेफिशिएंसी को पकड़ना कि ये अगर कम है तो हमें उसके लिए अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने हैं और हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे डेफिशिएंसी इस लेवल तक पहुंच जाती है कि फिर बाद में इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं या बहुत सीवियर सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। मोस्टली कैल्शियम सप्लीमेंट्स 1200 to 1500 मिलीग्राम पर डे लिए जा सकते हैं 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस के अंदर, लेकिन आपकी बॉडी की जो कैल्शियम डेफिशिएंसी लेवल है उसके बेसिस पे कैल्शियम सप्लीमेंट को घटाया बढ़ा जा सकता है। च्यूएबल कैल्शियम यूजुअली सबसे अच्छा होता है और सबसे अच्छा होता है दूध खाना, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। 20 मिनट्स एवरी डे का सन एक्सपोजर हमारी बॉडी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि बाकी का खाना और हमारी नींद। मॉर्निंग 7 टू आफ्टरनून 12:30 सबसे अच्छा टाइम होता है धूप खाने के लिए। तो सुबह अगर आप वॉक करते हैं तो थोड़ा सा हाथ और पाँव को एक्सपोज करें, और या फिर अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो धूप में बैठ के खाएं, अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा छत पे या बैल्कनी में या गार्डन में जाके बात करें, क्योंकि वो 15-20 मिनट्स का जो धूप है वो आपकी बॉडी को, आपको, आपकी बोन्स को, आपके कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को, आपकी आंखों को, इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सो विटामिन डी इज नॉट जस्ट अ विटामिन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि हमारी बॉडी के बाकी हार्मोन्स के साथ में काम करता है अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। सो आई होप विटामिन डी का जो इतना इम्पोर्टेंट रोल है वो नॉर्मल वे में डिस्कस नहीं होता, बट दिस इज अ प्लेस वेयर आई वांटेड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। एंड यस, हमारे रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पे लेडीज भी बहुत सारा स्मोक करती हैं, तंबाकू खाती हैं, बीड़ी पीती हैं, तो यस, दिस इंक्रीजेस द वेरियस प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स एजुकेटेड वुमेन आर अवेयर ऑफ दैट, और लेकिन फिर भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, रेंज ऑफ अदर health problems, and it also increases hot flashes and other menopausal symptoms. So just like the what we are doing just now, टॉक एंड डिस्कस, जो हमारा जहाँ जिस तरह से हमने ओपन किया था इस सेशन को कि बात करना चाहिए। यस, मेनोपॉज इज सब्जेक्ट विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड मोर, टॉक्ड अबाउट मोर। वी नीड टू टॉक विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, a doctor if you need to. Mood disturbances are very common in menopause transition phase, and if you have a hand on your shoulder, a sympathetic ear to listen to, it really makes a world of difference. It is related to estrogen deficiency or excess progesterone, dampening the positive effects of estrogen, or simply it can be circumstantial, यानी जो हॉर्मोन्स हैं उनका अफेक्ट तो हो ही रहा है बॉडी में जिसकी वजह से मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बट सिंपली सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे हो सकते हैं फैमिली में, आपकी हेल्थ, आपके स्पाउस की हेल्थ, आपके बच्चों की इलनेस, या आपके घर में किसी और तरह की हार्डशिप जो कि इसको इफेक्ट्स को एम्पलीफाई कर सकती है, जो सिम्टम्स हैं उनको एम्पलीफाई कर सकती है। So the menopause is something which perimenopausal symptoms are something जिनका ट्रीटमेंट के साथ साथ, जिनके साथ बात करके, डिस्कस करके उसको मैनेज करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। So my dear friends, life is changing and you avoid comparing your current reality to how I used to be. You know, women are usually, अरे
5 साल पहले मैं ऐसे करती थी, मेरा ये एनर्जी लेवल था, मैं इतना सब कुछ कर लेती थी, मैं बिल्कुल स्ट्रेस आउट नहीं होती थी, आई वॉज सो काम, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट. यस, यू आर चेंजिंग, लाइफ इज चेंजिंग. प्लीज डोंट कंपेयर योर करंट रियलिटी टू योर पास्ट. आप बहुत चेंज हो गए लाइफ में, सर्कमस्टेंसेस जैसे चेंज होते हैं, काम चेंज होता है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं, उसी तरह आपकी बॉडी भी चेंज हो रही है. वी हैव टू एक्सेप्ट इट द वे इट इज एंड द वे विद द चेंजेस इट इज गोइंग थ्रू. So we have to also recognize that this journey is unique, and we are open to the possibility that you emerge healthier, happier, energized, more confident and content with the road ahead. हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो आपको कमजोरी बनाएंगे. उसके साथ चलते हुए, उसके साथ एडजस्ट करते हुए, जब हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, डाइट चेंज करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो इवेंचुअली इट मे वर्क आउट फॉर आवर ओन गुड. हम ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हैप्पी और एनर्जाइज्ड, एंड वी आर लिविंग अ मोर फुलफिलिंग लाइफ. दैट इज अ वेरी मच big possibility when you are dealing with the phase of the menopause. So you assess your current lifestyle in areas like your eating habits, your physical activity, sleep, stress. Make a conscious commitment to actions that you are doing. Science and research has proven that all that is a big benefit. ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डॉक्टर है उसके साथ आप खुल के बात कर सकें. डॉक्टर, फाइंड अ डॉक्टर हु रियली लिसन्स एंड इज रियली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ. तो उसके साथ आप हर प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करके अच्छी तरह से समझ सकें और सपोर्ट ले सकें. उसके साथ में वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं. एक्सप्लोर इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑल्सो. जैसा हम कहते हैं कि एलोपैथी में है कुछ ट्रीटमेंट्स, लेकिन इंटीग्रेटिव मेडिसिन जैसे कि एक्यूपंक्चर, मेडिटेशन, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, योगा, माइंडफुलनेस, herbal medicines and having a good body relaxing massage, ये सब integrative and supportive medical facilities हैं जिनका यूज किया जा सकता है for good relaxation and controlling all the symptoms and actually calming yourself down during these problematic areas. एंड एज आई सेड, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग एलोपैथिक मेडिसिन भी अवेलेबल हैं. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बहुत डिस्कशन होता है, और आजकल काफ़ी सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सिम्टम्स कैन बी इजीली कंट्रोल बाय टेकिंग ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स, और आजकल लो डोज में अवेलेबल हैं. डॉक्टर्स काफ़ी इजीली वे में उनको काफ़ी प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड भी करते हैं, एंड देर इज नो हार्म इन यूजिंग देम फॉर सम टाइम. ऐसा होता है, एक टैबू है कि ये रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेना नहीं चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होते हैं, बॉडी पे इफेक्ट आते हैं. बट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर उनको नहीं लिया जाए, बट शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए अगर लिया जाता है, तो ये बहुत कॉमन रिकमेंडेशंस में आते हैं. स्किन स्पेशलिस्ट मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं बाल झड़ने के लिए. कभी कभी चेहरे पे या अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी होता है, तो उसके हिसाब से भी कुछ मेडिसिन एंड क्रीम्स अवेलेबल हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी और हॉट फ्लैशेस के लिए भी सर्म्स हम रेकमेंड करते हैं. सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स उनको बोला जाता है. ड्राइनेस के लिए जैसा मैंने पहले बताया, वेजाइनल मॉइस्चराइजर्स, लुब्रिकेंट्स और ऑस्मेरिफेन यूज करते हैं. यूटीआई, जैसा मैंने बोला कि यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं, तो उनके लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं. और जहाँ पे नींद की ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहाँ सेडेटिव्स भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट्स हमारे पास रिकमेंडेड है. एंड एज आई सेड, सनलाइट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. And yes, along with medication, we need to start taking better care of ourselves. Avoid the fall. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. आप कहीं भी जाएं, चढ़ें, उतरें, आप ध्यान रखें, सपोर्ट लें, प्रॉपर कमरे में प्रॉपर लाइट्स लगाएं. जहाँ पे ज़्यादा अगर पाँव में कोई दिक्कत है तो वॉकिंग स्टिक वगैरह यूज़ करें, फैमिली का सपोर्ट लें. तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स टू प्रिवेंट द फॉल. Various powerful antioxidants are available. विटामिन ई बहुत कॉमनली रिकमेंड किया जाता है, उसको भी नॉर्मल रूटीन सप्लीमेंटेशन के अंदर ऐड करना चाहिए.
अब ये क्वेश्चन आता है कि सिम्टम्स तो शुरू हो गए हैं, थोड़े बहुत हैं, तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? क्या हमें कब सोचना है कि जाना ही जरूरी पड़ेगा, या हम उसको घर पे ठीक कर सकते हैं, या खाने से ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मिलना तब जरूरी हो जाता है जब या तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप का टाइम आ गया। यस, दैट इज अनदर वेरी बिग इंडिकेशन दैट यू नीड टू हैव अ वेरी रेगुलर एनुअल विजिट विद योर डॉक्टर फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। सिर्फ ज्यादा बीमार होने पर ही डॉक्टर के पास नहीं जाना है, साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लेडीज स्पेसिफिकली स्किप कर जाती हैं। बाकी सबका ध्यान रखने में अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं कि अपना चेकअप कराना है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी सारे ब्लड टेस्ट, ईसीजी, ब्रेस्ट सोनोग्राफी, जनरल चेकअप और यूरिन टेस्ट, इन सब का चेकअप बहुत ज़रूरी है टू फाइंड आउट कि कहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कहाँ डेफिशिएंसी डेवलप हो रही है। ओके, टेस्ट लाइक कोलोनोस्कोपी, मैमोग्राफी, बोन मैरो डेंसिटी, ट्राइग्लिसराइड स्क्रीनिंग, ये सब इंडिकेट किए जा सकते हैं। अगर कोई इनिशियल इशू है, अगर डॉक्टर से डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम निकल के आती है, तो आपके डॉक्टर इस तरह के टेस्ट भी दे सकते हैं, और इनको टाइमली करवा लेना चाहिए ताकि जो ऑनगोइंग स्मॉल प्रॉब्लम है वो बड़ी ना हो जाए। डॉक्टर ये भी रेकमेंड कर सकते हैं, जिनके थायराइड, जिनको अगर प्रॉब्लम निकलती है, तो माइट रेकमेंड टेस्ट विच आर थायराइड टेस्टिंग इफ सजेस्टेड कि आपकी कोई हिस्ट्री है, and there is a breast and pelvic examination which is equally important. ओके, एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आजकल सभी क्लिनिक्स में सिखाया जाता है। अगर शुरू नहीं किया है तो प्लीज अपने डॉक्टर से समझ के लें। एवरी मंथ आफ्टर 4 to 5 days आफ्टर द पीरियड इज कंप्लीटली फिनिश्ड, आप कि मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट्स का पूरा चेकअप करें। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट शुड बी डन बाय एवरी वुमेन। एक्चुअली ये पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की जगह इवन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हर लड़की को स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 25 ब्रेस्ट हेल्थ चेक करना चाहिए, खुद से अपने ब्रेस्ट का हेल्थ चेक करना चाहिए। और उसमें स्पेसिफिकली हम क्या देखते हैं कि ब्रेस्ट का साइज कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, निपल का कलर कैसा है, निपल का साइज कैसा है, निपल के आसपास जो अरियोला है वो एकदम हेल्दी है या नहीं, वहां पे कोई बम्प तो नहीं डेवलप हो रहा, कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही, रेडनेस तो नहीं आ रही, कोई डिस्चार्ज तो डेवलप नहीं हो रहा है निपल से। तो ये कुछ चीजें हैं। और ब्रेस्ट को हथेली से, हल्के हाथ से आप दबा के नोट कर सकते हैं कि अंदर कोई गांठ जैसा कुछ फीलिंग तो नहीं हो रही। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी मंथ ये चेकअप किया जाए, और जब भी कोई दिक्कत लगे तो डॉक्टर को तुरंत अप्रोच किया जाए और उसका प्रॉपर असेसमेंट करवाया जाए कि ये नॉर्मल है या इस पे कुछ ध्यान देने की जरूरत है। So friends, menopause is a great time for deep personal reflection. So as I said, menopause usually arises after 40 years of age. तो उस टाइम आपके पास में फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ वक्त होता है जहाँ पे आप ये सोच सकें कि मैंने अभी तक क्या जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं वो किस तरह से करी हैं, उनमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, कुछ अपने लिए सोच सकती हूँ, अपनी हॉबीज के लिए सोच सकती हूँ। हाउ डू आई वांट टू गो अहेड इन द माय लाइफ, जो इतना टाइम मैंने अपनी फैमिली को दिया है, अपने बच्चों को दिया है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर निकल गए हैं। सो यू डोंट हैव टू रन कि आज उसको फुटबॉल क्लास से लेके आना है, अभी गिटार क्लास से लेके आना है, उसको स्कूल ट्यूशन से लेके आना है। मे बी दैट इज ऑल डन एंड दे आर ऑल इनटू कॉलेज, या आप अपनी जॉब करने लग गए। सो नाउ यू हैव अ टाइम टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। Begin as early as you can to make small adjustments in your eating habits. अब बच्चों के हिसाब से खाना नहीं बनाना है, अपने हिसाब से बनाना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना है कि काम के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकले, और अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करना है। पहले तो उसके लिए कभी वक्त निकाला ही नहीं, लेकिन अब ये वक्त है जब अपने इमोशंस के बारे में, अपने बारे में, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें
बात करना अच्छा लगता है, दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, तो उसके लिए क्या अब हम टाइम निकाल सकते हैं? क्या अब हम लोग गेट टुगेदर्स कर सकते हैं? क्या अब मैं ट्रैकिंग पे जा सकती हूँ? क्या अब मैं एवरी संडे ट्रिप प्लांटेशन के लिए जा सकती हूँ? यस आई कैन, बिकॉज नाउ आई हैव सम टाइम फॉर माई ओन हॉबीज. आई वॉन्ट टू पेंट, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू प्ले सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इन सब के बारे में जो कभी इतने सालों शायद रह गया था कहीं किसी बंद बस्ते में, उसे बाहर निकालने का ये सही टाइम है. Because it is going to give you a beautiful moment with yourself, something which you never had earlier. And I really recommend that this is the right time to start thinking about that. So we had a survey of women in this perimenopausal age group. And सबसे इम्पोर्टेंट जो उस सर्वे का जो रिजल्ट निकल के आया वो ये था कि जो इस एज पे जो विमेन है, दे लर्न टू हैव अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हाउ ऑल द स्टफ दैट हैपेंड इन देयर लाइव्स कम्स टू अहेड. मतलब पीछे मुड़ के हम अपनी लाइफ को देखते हैं, उसको असेस करते हैं, क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने आता है. दे आर डूइंग अ रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट ऑल दैट वाज, क्या था, एंड व्हाट दे वोंट पुट अप विद, क्या क्या सहन किया जो अब नहीं करेंगी, एंड व्हाट दे विल चेंज. अब अपनी लाइफ में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं. स्टार्ट टेकिंग बेटर केयर ऑफ देमसेल्व्स, खुद का कुछ और अच्छा ध्यान रखें और अच्छी तरह से अपनी देखभाल कर पाए. डू नॉट वरी अबाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स. उतनी चिंता अब नहीं करनी है, सबसे पहले अपने आप को रख सकते हैं. अब जब पहले सब कुछ अपने आप को सबसे बाद में रखते थे, तो वो चेंज, वो जो प्रायोरिटी है वो अब हम चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू डू दैट. सो लेट्स रॉक by menopause. That should be our motto, my dear friends. कि menopause is a time to rejoice. It is a time to refresh. It is a time to rejuvenate yourself. It is not a depressing time. It is a time to start thinking about yourself. It is a time to start investing in you. And that's how, just like every phase of our life, we have come out winners. So this is also a phase of our life which we will fight and we will win and we will enjoy. Thank you so much, my dear friends, for your hearing me out and having me here. And this is my detail, for the phone number and the details of my clinic and the kind of services that I'm providing from last 25 years. As Vinita ji had explained, that I am living in Pune. So this is my setup in Pune. Thank you so much for your patient hearing, everyone. Sure. Thanks for your insightful session. So I would say menopause is just a pause in your life. It is not a full stop. और Yes. इसके आगे की कहानी हम बहुत अच्छी लिखने वाले हैं. आपकी लाइफ की हीरोइन आप हैं, ये आपकी स्टोरी है. तो मेनोपॉज के बाद की कहानी भी आपने लिखनी है, बहुत अच्छी लिखनी है, एंड वील डू वंडर्स.